हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म बारे डिटेल्स +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री च ਆਪਾਂ सब ने पढ़िया होया है। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म? Two or more than two compounds having same molecular formula but they differ in the arrangement of atoms are called isomers. मीन्स जो आइसोमर्स की जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज़ बेटा सेम मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। Because of the presence of isomerism, isomers differ in their physical as well as chemical properties. ठीक है, for example, if we take the molecular formula as C2H6O, ठीक है, so it can exist as alcohol as well as ether. ठीक है, CH3 CH2OH and CH3O CH3. ठीक है, सो बोथ हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट दे आर टोटली डिफरेंट इन देयर फिजिकल एज वेल एज कैमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर तुसी डिटेल जदी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना चाहोगे बेटा, इट कैन बी ड्रॉन एज CH3, दिस इज़ योर CH3, दिस इज़ योर CH2 एंड दिस विल बी योर OH। ठीक है, सिमिलरली अगर असी ईथर दी ड्रॉ करने की कोशिश करिए बेटा, दिस इज़ योर CH3OCH3। सो यू कैन सी दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो सच टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट। ठीक है, so what are main types? Structural isomerism and second is stereoisomerism. ठीक है, structural isomerism has further 4 subtypes: ionization isomerism, solvent solvate or hydrate isomerism, third one is linkage and fourth one is coordination isomerism. Similarly, stereoisomerism can be further divided into 2 subtypes: geometrical isomerism as well as optical isomerism. So we will discuss it in detail. हाँ जी बेटा, अपनी फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला but differ in the structural arrangement of atoms around the central metal atom. ठीक है, this type of isomers are known as structural isomers and process is called as structural isomerism. सेंट्रल मैटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ बेटा। सेंट्रल मैटल एटम ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? इट बिलोंग्स मोस्टली टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स और यू कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिदा कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਡਾ सेंट्रल मैटल एटम है दैट इज़ योर CO कोबाल्ट। ठीक है, सो इट्स फर्दर फर्स्ट सब टाइप इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट विल डिफर इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयंस। ठीक है, सो द आइसोमर्स विच गिव different ions in the solution are known as ionization isomers and this is due to the exchange of ligands within and outside the coordination entity। उन coordination entity बारे भी तो बेटा आई थिंक सबनों पता है। coordination entity means which is written inside the square bracket। ठीक है, हुण बेटा आपां इस चीज़ बारे वर्नर थ्योरी पढ़ चुके हैं कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एटम हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज: प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसी। एंड प्राइमरी वैलेंसी इज़ आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज़ नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, तो हुण इहदे विच इसने डिफरेंट ऑयंस शो करने हैं बेटा। सो it is found that this coordination compound give 2 different types of ions on treatment with 2 different solutions. ठीक है, one is your barium chloride and second is your silver nitrate. So when this coordination compound is treated with barium chloride, it was found that it gives white PPTs of barium sulfate.
So sulfate, it means in this case sulfate will be present outside the square bracket so that it can be ionized. ठीक है, अगर इनू बेटा आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर इंक्लूड कर लांगे इट विल नॉट बी आयोनाइज्ड. ठीक है, सो इन इट्स फर्स्ट आइसोमर सल्फेट विल बी रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, सो इट कैन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म द पीपीटीज ऑफ बेरियम सल्फेट. Second time it gives the PPTs of silver bromide, means now bromine is present outside the square bracket so that it can react with silver nitrate to give the PPTs of silver bromide. So second time bromide will be written outside the square bracket. So from this example it is very clear that what do you mean by ionization isomerism. It will give ions of sulfate and it will give ions of bromide ion. ठीक है, so that's why this is called ionization isomerism. ठीक है बेटा. सेकेंड टाइप इज योर सॉल्वेंट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. ठीक है बेटा, हुण फिर इसके नाम तो ही याद रखने की कोशिश करनी है, सॉल्वेंट और हाइड्रेट. हाइड्रेट वर्ड बेटा हमेशा रिलेट करता है वाटर नू. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ आइसोमर्स differ in the number of solvent molecules present as the ligands and free solvent ions present outside the square bracket. ठीक है, हुण देखो बेटा आप की कह रहे हैं कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये डिफर करेगा इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज द लीगेंड्स. बेटा इत्थे लीगेंड्स का मतलब है कि दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम एंड फ्री सॉल्वेंट आयंस का मतलब है विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है बेटा, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इफ वी टेक सॉल्वेंट एज वाटर. ठीक है, सो एग्जाम्पल देखो बेटा, if we write this coordination compound, now water is directly attached with cobalt because it is written inside the square bracket, so it will not form any water molecule, it will not give any water molecule. ठीक है, तो इस करके इस दे विच कोई भी वाटर मॉलिक्यूल सानू इन द फॉर्म ऑफ आयन नहीं मिलेगा. ठीक है बेटा, सैकेंड दे विच की हो गया, आप की कर रहे हैं बेसिकली एक क्लोरीन नू अंदर ले जा रहे हैं और वो पैरलल एक वाटर मॉलिक्यूल नू आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं सो दैट इट कैन बी आयोनाइज्ड. ठीक है, सो नाउ इन दिस केस इट विल लूज वन वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, हम बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जोड़ा तुहाडा मैटल एटम है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा फिक्स हुंदा है. ये भी आप वर्नर थ्योरी दे विच पूरी डिटेल स्टडी किया होया है. इत्थे दा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है बेटा 6. हेयर इट शुड बी 6. 5 + 1 6 मीनस अगर तुसी एक वाटर मॉलिक्यूल नू स्क्वायर ब्रैकेट दे बाहर लैके जा रहे हो तो पैरलल एक क्लोरीन नू स्क्वायर ब्रैकेट दे अंदर भी इंक्लूड करना है. ठीक है, सिमिलरली इफ वी मूव 2 वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट सो 2 क्लोरीन विल गेट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ इट कैन गिव 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा, इट शुड कंटेन, जो भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इट शुड कंटेन 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एनोयनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मीन्स एक पॉजिटिव पार्ट वाला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और एक नेगेटिव पार्ट वाला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. और ये सिंपलेस्ट आइसोमेरिज्म है बिकॉज तुसी इहदे विच किद्दां शो करना है, सिंपली तुसी जो लीगेंड्स कैटायनिक पोर्शन लगे हुए ने उन्होंने एनायनिक शिफ्ट करना है और जो लीगेंड्स एनायनिक पोर्शन होंगे उसनों तुसी कैटायनिक दे विच शिफ्ट कर देना है. ठीक है, दैट इज विल बी योर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. हाँ जी बेटा, हुण आपां गल कर रहे सी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दे विच आ लिता है
इट हैज़ कैटायनिक एज वेल एज अनायनिक complexes, ठीक है। सो इस आइसोमेरिज्म ਨੂੰ शो ਕਰਨ ਲਈ सिंपलेस्ट वे की है, यू हैव टू राइट दिस लीगेंड विद दिस मेटल एटम एंड दिस लीगेंड विद this metal atom. Simply exchange of ligands between cationic and anionic complexes occur, ठीक है। सो कोबाल्ट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ साइनाइड लगाता बेटा और क्रोमियम ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अटैच करता एमाइन लिगेंड। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ सब टाइप ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म इज this type of isomerism occurs in those coordination compounds in which ambidentate, हाँ जी बेटा ambidentate, ambi ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है टू, ठीक है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है यदि जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है दैट इज़ योर लीगेंड शुड बी ambidentate, ठीक है। बिकॉज जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है बेटा इट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। बिकॉज दिस आइसोमेरिज्म डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है बेटा। हुण देखो ये अगर आप इसनूं देखिए मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्रॉ किया है, ठीक है, जिस दे विच कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है और इस दे नाल की लग्या होया बेटा 5 एमीन्स दे मॉलिक्यूल एंड एक नाइट्रीटो, ठीक है। तो इसनूं असी अगर लिखना चाहिए तो असी इसनूं लिख सकते हैं CONH3 5NO2, ठीक है बेटा। और इसनों असी लिखांगे CONH3 5 बट दिस टाइम ONO, ठीक है। तो बेटा देखो बेसिक डिफरेंस की है, NO2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये लीगेंड है नाइट्रीटो लीगेंड है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड टू द कोबाल्ट थ्रू नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के थ्रू ये नाल अटैच है, ठीक है। और इस केस दे विच एक किस चीज़ से अटैच है थ्रू ऑक्सीजन, क्लीयर बेटा। मीन्स जो तुहाडा लीगेंड है NO2 नाइट्रीटो लीगेंड है इट इज़ एक्टिंग एज एम्बीडेंटेट लीगेंड, मीन्स इट कैन कोऑर्डिनेट विद कोबाल्ट विद टू साइड्स दैट इज़ योर नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड फर्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो केड़ा आपां कवर किया बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिस दियां फरदर असी 4 सब टाइप्स स्टडी कीतियां ने, केड़ियां बेटा। फर्स्ट वॉज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड वॉज सॉल्वेंट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड वॉज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ वॉज लिंकेज आइसोमेरिज्म। So now we will shift to the second type of main isomerism, that is your stereoisomerism. So stereoisomerism, again we can write the isomers which have same molecular formula but they differ in the spatial arrangement of atoms, ठीक है। स्पेस दे विच उन्हां दी अरेंजमेंट दा फर्क पेगा अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। सो इट हैज़ 2 सब टाइप्स, फर्स्ट इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वी विल डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ जी बेटा +1 ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री दे विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म असी थोड़ा जा पढ़िया सी इन केस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। when the two same groups are present adjacent to each other that is called cis form, and if they are present exactly opposite to each other that form is known as trans form, ठीक है। so now we have to study it in the case of coordination compounds. So
first necessary condition for the geometrical isomerism is your complex should be heteroleptic, ठीक है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये किहड़े कंपलैक्सिस दे विच किहड़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे विच पॉसिबल है बेटा, जिस दे विच एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लीगेंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर सारे लीगेंड्स सेम टाइप दे ने दैन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लैक्सिस, ठीक है। जो लीगेंड्स, ठीक है, मोस्टली असी पहला डिस्कस करते हैं सिंपल फॉर्म नाल, जो 2 सेम लीगेंड्स होंगे अगर वो एडजेसेंट पोजीशंस ते प्रेजेंट होंगे, एडजेसेंट का मतलब होंगे बेटा बिल्कुल नाल नाल वालियां पोजीशंस ते प्रेजेंट होंगे, दैन दैट आइसोमर विल बी नोन एज सिस आइसोमर। And if the same ligands are present at opposite positions, then it will be known as trans isomer, ठीक है बेटा। हुण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नू असी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे विच फर्दर 4 एग्जांपल्स दे नाल स्टडी करन लगे हैं बेटा। फर्स्ट इज योर in the coordination compound of type Ma2B2. Here A and B stands for 2 different type of ligands, ठीक है बेटा। Here 3 types of ligand, ठीक है, A, X, Y, again 3 A, B and C. Here 4 ligands are totally different from each other. So we are studying it in case of coordination compound having coordination number 4. देखो बेटा 2 + 2 4, 2 3 4, 2 and 2 4, again 1 2 3 4 means first असी geometrical isomerism ਨੂੰ डिस्कस करांगे in the coordination compound that has coordination number equal to 4. Now if the coordination number is 4, then it can exist as tetrahedral or square planar geometry, but in case of tetrahedral arrangement no geometrical isomerism is possible because all the positions are adjacent to each other, ठीक है। तो इस करके असी टेट्राहेड्रल के केस दे विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नो स्टडी नहीं करते। तो असी केड़ी कंपलैक्सिस लैने ने बेटा स्क्वेयर प्लेनर, क्लियर। सो फर्स्ट आई विल राइट Ma2B2, ठीक है बेटा। तो हुण अगर असी इसनों ध्यान नाल देख रहे हैं बेटा, बोथ A आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड हेयर बोथ B आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सो इफ द ligands are adjacent, then that form is known as your cis isomer. So this is the example of cis isomerism. And if we change the position of A and B, ठीक है, B here and A here, then we will get this form. Now you can see both A are exactly opposite to each other and both B are exactly opposite to each other, means same type of ligands are present opposite to each other. So this form will be your trans form. So this is your trans isomer, clear beta। next is your Ma2XY. now we have 2 ligands of same type and 2 are of different type, ठीक है। so we can write it AA, ठीक है, XY, ठीक है। now these are adjacent, so this will be cis form, and if we write AA then it will be your trans form, clear beta। की कितना मैं A2XY दे विच एक बारी A नू एडजेसेंट पोजीशंस ते रख लिया बेटा और दूसरी बारी A नू टोटली ऑपोजिट साइड से लिख लिया, देन इट इज़ योर ट्रांस फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ MABC2 मीनस हुण भी मैं की किया बेटा AB 2 डिफरेंट लिगेंड्स ले ले और जो 2 सेम लिगेंड्स ले ले C2 मीन्स इन केस ऑफ A you can write here C here A and B, ठीक है। we can show it as if we write here C and C and here A and
B. So both C are adjacent, so this will be your cis form. ठीक है, and if we write C and C and here B and A, now C are exactly opposite to each other, so this will be your transform. Clear beta? So this is cis and transform, and this isomerism is called as geometrical isomerism. Next is your MABCD type. In this case, 4 ligands are totally different from each other. To show the geometrical isomerism, in this case we don't use the term cis and trans, we simply draw the isomers by keeping the position of one ligand fixed. ठीक है, तुसी इन्हां चारा लीगेंड्स जो बेटा किसी भी एक लीगेंड दी जो पोजीशन है वो फिक्स कर लेनी है, बाकी तीनों नूं डिफरेंट पोजीशंस से एडजस्ट करना है. और एक चीज़ याद रखनी है बेटा, M मीन्स द सेंट्रल मेटल एटम. Clear beta? Now MABCD. So in case of first, I have written M means central metal atom, and I have kept the position of A ligand fixed. ठीक है, तब मैं A नू हमेशा फिक्स रखा हुआ है. Now in this isomerism, I have taken B cis to A, means B is present adjacent to A. C is trans to A and D is again cis to A. Clear beta? So first possibility is this, by keeping the position of A fixed, B and D are cis to A and C is trans to A. Another possibility is we can take C as cis to A, B trans to A and D again cis to A. In third case, we can take as D trans to A, B and C are cis to A. If you want to draw any other isomer, you will see this will be the repetition of these three. ठीक है, for example, if we write this, ठीक है, हुण आपां A नूं तां बेटा फिक्स किया होया C cis to A. हुण मैं इत्थे की कीता बेटा D ट्रांस ही लिती हुई है, अगेन B की है cis. सो इफ वी कंपेयर दिस एंड दिस, ठीक है, these are exactly same. Why? Because in this case again D is trans to A and B and C are cis to A. Means in case of complexes of type M, A, B, C, D, only 3 isomers are possible. Clear beta? So this is the repetition of third, so it should not be included in the isomers. Clear beta? So next is coordination compounds having unsymmetrical bidentate ligands. ठीक है बेटा, केड़े ligands लेने ने? Unsymmetrical bidentate ligand. तो आपां इत्थे एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा ग्लाइसिनेटो. ठीक है, तो ग्लाइसिनेटो जो ligand है बेटा, इट इज़ bidentate because it has 2 donor sites. केड़ियां बेटा? नाइट्रोजन as well as oxygen. So such type of ligands are known as bidentate and it is unsymmetrical. Unsymmetrical ਦਾ मतलब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 donor sites ਨੇ बेटा, they are different from each other. ठीक है, तो if we take the example of ethane 1,2-diamine or simply ethylene diamine, this type of ligand is known as symmetrical bidentate ligand. ठीक है, हुण अगर आप सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड नू ड्रॉ करन दी कोशिश करिए किसी कॉम्पलैक्स दे विच, देखो जिद्दां मैं शो किया होया कॉपर इज़ बाउंडेड टू लाइक दिस. ठीक है, बेसिकली मैं आ चीज़ ड्रॉ की हुई है बेटा. ठीक है, तो इस केस दे विच की है बेटा, तुहाडा जो लीगेंड है दैट इज़ योर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीगेंड. ठीक है, तो हुण इहदे विच कोई भी सिस या ट्रांस की पॉसिबिलिटी नहीं है.
ठीक है। बट अगर तुसी इस लीगेंड नू रिप्लेस कर दिंदे हो विद एनी अनसिमेट्रिकल बाईडेंटेंट लीगेंड, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिनेटो, ठीक है, जिद्दां कि मैं लिखा होया है CH2NH2 CO नेगेटिव, ठीक है। तो हुण एक बारी मैं नाइट्रोजन नू अपवर्ड लिखा होया है और इधर मैं डाउनवर्ड शो किया है। इट मीन्स वी कैन टेक इट एज ट्रांसफॉर्म, ठीक है बेटा, क्योंकि जो बाइंडिंग साइड्स ने मीन्स इत्थे भी बाइंडिंग साइड नाइट्रोजन है और इत्थे भी बाइंडिंग साइड नाइट्रोजन है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। सिमिलरली अगर असी इत्थे देखिए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एंड इफ वी शिफ्ट दिस COO to upward position and NH to lower position, ठीक है, then what will occur, these nitrogens, ठीक है। जे मैं इस एमीन नू नीचे शिफ्ट करदा और इस ग्रुप नू COO नेगेटिव नू ऊपर शिफ्ट करदा बेटा, then both amines are on same side and these groups are on the same side, means adjacent sides, then this will be known as cis position. Clear beta? So this is the geometrical isomerism having unsymmetrical bidentate ligands. Next is geometrical isomerism in case of coordination compound having coordination number 6, ठीक है बेटा। So अगर coordination number 6 है तो geometry केड़ी होएगी, octahedral, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ टाइप Ma4B2, मीन्स 4 लीगेंड्स बेटा एक तरह दे ने और 2 लीगेंड्स दूसरी तरह दे ने, ठीक है बेटा। हुण देखो 4 लीगेंड्स नू मैं कॉर्नर्स से प्लेस करता और 2 लीगेंड्स नू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पोजीशन ते शो करता। हुण बेटा अगर असी इन्हां नू देखिए, दीज 2 लीगेंड्स B and B, they are exactly opposite to each other, so this is your trans isomer, ठीक है। and if we change the position of B from here to here and A from here to here, ठीक है, then these 2B will be present adjacent to each other, ठीक है। now these 2B are adjacent to each other, so this isomer will be your cis isomer। clear बेटा। 4 लीगेंड्स एक तरह दे सी बेटा, 2 दूसरी तरह दे सी, तो असी इन्हां दोनों नू बेस लैके चलना है। इफ दे आर प्रेजेंट ऑपोजिट दैन द आइसोमर विल बी ट्रांस एंड इफ दे आर एडजेसेंट द आइसोमर विल बी सिस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज Ma3B3 type, means 3 ligands are of same type and another 3 ligands are of same type। clear beta। so in first case I have placed 3A, means 3 ligands on adjacent position and 3 ligands on another adjacent positions। similarly in second I have taken B as in between the 2 same ligands, ठीक है। तो हुण इहदे विच की है बेटा, when one type of ligands, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ द octahedron, then this type of isomer has a special name known as Fick isomer or facial isomer, when 3 ligands are present at the when 3 same ligands are present at the triangular face of the octahedron, then this isomer is known as Fick isomer or facial isomer। and if these 3 ligands are present on the equatorial plane of the
octahedron, ठीक है, this is your equatorial plane of the octahedron. Then this isomer is known as Mer isomer or meridional isomers, ठीक है बेटा. So next example is of MAA2B2. Now here AA means your ligand is bidentate, ठीक है बेटा. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4+2 6, क्योंकि ये देखो 2 डोनर साइड्स ने बेटा, ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ए दी जगह मैं की लै रही हूँ बेटा ईथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है. तो अगर असी इन्हों, ठीक है, एक कोई भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड है, वी कैन राइट इट एज EN. इतने मैं पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल ले ली बेटा, तो यू कैन राइट AA ऑल्सो, ठीक है. तो कोई भी सेंट्रल मैटल एटम है, ठीक है, ये जो बाईडेंटेंट लिगेंड है, एक बारी मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट लिता है और मोनोडेंटेंट लिगेंड्स नू भी एग्जैक्टली ऑपोजिट लिता है, ठीक है. सो दिस विल बी योर ट्रांसफॉर्म, ठीक है. तो इत्थे प्रेफर करो बेटा कि असी यूज़ कर रहे हैं AA, ठीक है. बेसिकली इट इज़ योर bidentate ligand, ठीक है. अगेन वी कैन राइट इट एज A, ठीक है. when these are present exactly opposite to each other and these two are exactly opposite to each other, this is your transform and this is your cis form. देखो बेटा adjacent positions, ठीक है, and 1 2 3 4 these are again adjacent to each other, so this is your cis form. Sorry beta. So this is a geometrical isomerism in coordination compounds having coordination number 6, ठीक है. So next is your last type of isomerism, that is your optical isomerism. So what do you mean by optical active substances, ठीक है. So optical active substances are those substances which can rotate the plane polarized light, ठीक है. असी जो लाइट नू प्लेन पोलराइज किया है और असी उसनों किसी ऐसे सबस्टांस तो पास करते हैं कि जो उस लाइट नू आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट डायरेक्शन रोटेट कर सकता है, ठीक है. दैट सबस्टांस विल बी नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस, ठीक है. तो सिमिलरली द आइसोमर्स, ठीक है, द आइसोमर्स विच कैन रोटेट the plane polarized light are known as optically active isomers, ठीक है बेटा. कोई भी आइसोमर जेड़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट नू रोटेट कर सकता बेटा, वैदर इट इज़ इन राइट डायरेक्शन और इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट आइसोमर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है. तो जो आइसोमर रोटेट करता है बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट नो राइट डायरेक्शन वाल, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एंड जो रोटेट करता है टू द लेफ्ट, दैट इज़ नोन एज लीवो रोटेटरी और सिंपली डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, ठीक है. और ऑप्टिकली एक्टिविटी ले एक जो कंडीशन है बेटा, your substance should not have any plane of symmetry, ठीक है बेटा. उसदे विच plane of symmetry present नहीं होना चाहिए. अगर उसदे विच plane of symmetry present होएगा, that will be optically inactive, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेटा असी मिरर दे विच भी अगर अपना राइट हैंड देखते हैं, दैट इज़ seen as left hand, and if we try to superimpose it, they are non superimposable on each other, ठीक है बेटा. जिदा कि हम मैं इत्थे लैटर ड्रॉ किया है एक सी, तो इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा बेटा. सो इट इज़ नॉट सुपरिम्पोजेबल ऑन दिस, ठीक है. सिमिलरली अगर असी लैटर F लै रहे हैं, दैट विल बी एग्जैक्टली सुपरिम्पोजेबल ऑफ इट. मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर्स होंगे ने बेटा, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है.
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ in which again coordination number is 6. One ligand is bidentate and another is unidentate. ठीक है, तो हुण देखो इहदे विच मैं शो किया बेटा, एक बारी मैं इसकी सिस फॉर्म लै ली बिकॉज बोथ एक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड दीज आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, जदों आपां इसकी मिरर फॉर्म ड्रॉ करांगे बेटा तो लैफ्ट वाला पोर्शन राइट ते चला जाएगा, राइट वाला लैफ्ट ते चला जाएगा। ठीक है, सो अगर तुसी इसके ऊपर सुपर इंपोज करने की कोशिश करोगे इट विल बी नॉन सुपर इंपोजेबल। सो दिस फॉर्म इज योर ऑप्टिकली एक्टिव, मीन्स इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बट अगर असी इस कॉम्पलैक्स की ही ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर लिए, ठीक है, मीन्स एक्स आर ऑपोजिट्स एंड बाइडेंटेंट लिगेंड्स आर अगेन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जदों तुसी इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हो बेटा तो सेम बन रहा है बेटा। ठीक है, तो इफ़ यू ट्राई टू सुपर इम्पोज दिस ऑन दिस दे विल कंप्लीटली कवर ईच अदर। ठीक है, मीन्स ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन दिस केस। So this is your optical isomerism in case of coordination compounds. Clear beta? So this is all about the various type of isomerisms that can exist in coordination compound. In case of any problem you can ask me. ठीक है बेटा, thank you.